Again, I would like to tell you here ki what we have today for you. I have to go with the romantic age, William Wordsworth as a poet. And why I'm going to discuss these two topics? Because I have to take a very important, a very beautiful poem of William Wordsworth, that is Tinted Away, and I will go in a detailed way. But before taking that poem, you will come to know ki what the basic characteristics of the poetry of William Wordsworth has, and how we can apply those things when we discuss his poem Tintin Abbey, and what was romantic age or romanticism, and the basic characteristics of romantic age or romanticism. मैंने आपको एक फाइल शेयर किया था, जिसमें याद होगा उस फाइल का नाम है अभी रोमांटिक एज है। उस फाइल में तीन हिस्सा है, रोमांटिक एज है, ओरिजिन ऑफ द नॉवेल है, और साथ ही साथ आपका एक विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोयम है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या है, ओवरऑल वो सारी बातें हुई है। सो टुडे आई विल टेक ओनली विलियम रोमांटिक एज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट, बिकॉज़ सिंस टुमारो आई विल डिस्कस विद यू टिंटन अबे। टिंटन अबे काफी इम्पोर्टेंट पोयम है, 163 लाइन्स के अप्रोक्सीमेटली 163 लाइन्स है, तो ये काफी समय ले भी लेगा उसमें डिस्कस करने में। और एक पोयम अभी छूट गई है जो डिस्कस मैंने नहीं किया है, दैट इज रेप ऑफ द लॉक, जो मॉक एपिक है उसका फर्स्ट कैंटो। आई हैव टू कवर दैट थिंग आल्सो। सो टिंटन अभी लेने के बाद मैं रेप ऑफ द लॉक पर आऊंगा, उसको मैं कवर करूंगा। तो जस्ट लेट मी शेयर विद यू दैट पीडीएफ फाइल, ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ सके। हियर यू फाइंड की इफ इट्स विजिबल लेट मी नो। Excuse me, sir. या Yes, sir. Sir, canonization is completed. I think नो, it was. I think he 2 or 3 stanza. Yeah, yeah, I sir. have taken I have taken only 3 or 4 stanzas. 2 or 3 stanzas I could not complete. So yeah, I Yes, will sir. just note down in my diary, and I will Okay, sir. go Okay, with sir. the remaining part of canonization, and then Yes, sir. I will cover. But I will cover these two things after taking Tintin Abbey, because Tintin Abbey, why I want to take this time I'm taking William Wordsworth. Earlier I had taken also a beautiful sonnet of William Wordsworth, that was The World is Too Much Bigger. So I just want to complete this man. After completing this man, William Wordsworth, then I will cover the remaining part. उसको मैं cover कर लूँ. Okay, sir. Okay. Okay, okay, okay. So I hope कि this PDF file is visible, and here you will come to know the name of the file is what? The Revival of Romantic Poetry. And whenever we talk about the revival of romantic poetry, you will come to know William Wordsworth, John Keats, P.B. Shelley, Goethe, Lord Byron, S.T. Coleridge, well-known literary figures of romantic age, well-known poets. They were the well-known poets of romantic age. Second important point ki they did a very good job. And what was that? That was they just uh, brought a new concept of poetry which we had seen either in medieval age or something you can say in Elizabethan age. So after a wide gap, that gap was from restoration to age of sensibility, 1660 से लेके 1700 तक। 1660 से लेके 1700 तक मीन्स नॉट 1700 बट 1785 से के बीच का जो पोइट्री होती है वह आर्टिफिशियल रही थी, प्रोजाइक थी, हीरोइक कपलेट का यूज था, कोटली मैनर का था। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड विद यू अलेक्जेंडर पोप, his age, the poetry which came in that age. These things I shared with you. What I want to say, when I talk about that particular age, Restoration age, Augustan age, or age of sensibility, from 1660 to 1785, you come to know कि after 1785 या in 1789, you find another type of poetry
That poetry is known as romantic poetry. And the torch bearer, you can use the word the path maker, you can use the word something, the huge personality, the giant figure of that age was William Wordsworth. Because when I talk about LT syllabus, in LT syllabus, William Wordsworth is in our syllabus. And when you come to know about this man, come to know about this man means about William Wordsworth, you find that William Wordsworth just brought a new concept of poetry, and he mentioned that concept in Preface to Lyrical Ballad. Preface to Lyrical Ballad, which came in 1800. He just mentioned that concept of poetry, poetic diction. He also told poetry is the image of mind and nature. He also told कि diction means selection of words and what type of words a poet should use, a poet should select. These things you will come to know. What I want to say before taking his age, I just want to recalling, recalling your memory. Something is stored in your memory because when you are doing graduation, when you are doing post graduation, you have read this poet and you have also read the poem 3 years she grew in intermediate maybe, and you have read Tintin Abbey in BA first year or something in MA previous. You have read Ode on the Intimations of Immortality, and those who were preparing for TGT and or PGT, that is conducted by Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board. They know it very well. There is William Wordsworth, and in a very detailed way, so many poems. Even they have attended my lecture, and I had gone. I had gone, and they know the basic characteristics of this man. He says that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. That is the definition. I'm not explaining the definition, just highlighting the basic points of his poetry. Second point, he says poetry is the image of mind and nature. Third point, you will come to know poetry is the countenance of all the branches of knowledge. I'm not quoting exactly, but you can say कि what the sense what he wants to say कि ज्ञान की सारी विधाएं पोइट्री से ही शुरू होती है, ये चीज उनका कहना था. And second point you will come to know, he gave the concept of uh, uh, that was what that was a poetic diction, and poetic diction means selection of words. और जब उनसे पूछा गया कि what type of words should be used by poet when any poet compose the poetry, he said one must use you can say uh, such type of word that is spoken by the villagers, rustic people and rustic language. Rustic means the people who live in the village area or remote area, countryside area, जिसको हम लोग रस्टिक पीपल कहते हैं. ठीक है, ये भी बात समझ में आती है. यू हैव रेड ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, यू हैव हर्ड अबाउट दैट इज द प्रिल्यूड एक्सकर्जन. उनका अपना एक ट्रेजेडी द बार्डर्स रहा है, उनका अपना एक सोनेट रहा है 523 का, डटन सोनेट रिवर डटन के नाम पर रखा गया है. बट हियर आई वांट टू टेल यू कि वेयर वाज ही इंस्पायर्ड. सवाल उठता है कि वर्ड्सवर्थ अचानक धरती पर पैदा तो होते हैं, हर आदमी जन्म लेता है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसकी पर्सनालिटी में जो निखार आता है, वह इसी धरती पर, इसी माशरे में फलता है, फूलता है. यही का अन्न, पानी, ऑक्सीजन, तमाम चीजों को लेकर के वो मेच्योर पर्सनालिटी के रूप में आता है. बट before being a mature personality, some factors, some situations, some conditions contribute in the development of that person and personality. तो क्या चीज रही थी? सबसे पहला चीज क्या था? फ्रॉम 1660 टू 1785, 1660 से लेकर 1785 तक का जो पीरियड था,
वो पीरियड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्या अदा करता है? उसमें जो लिटरेचर था, वहाँ पे हीरोइक कपलेट का यूज था, वहाँ पर कोटली मैनर का यूज था, ह्यूमन नेचर का यूज था, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट लिटरेरी नॉर्म्स था, सेजरा का यूज, पास का यूज था, इवन यू कैन से एक्सेप्ट दीज थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वहां पे माइंड का यूज था, हार्ट का यूज नहीं था। लोग वहां अपने दिमाग की हलचल को तो सुनते थे, लेकिन जो है आत्मा की सुबुगाहट को नहीं महसूस करते थे। दैट वाज द बेसिक डिफरेंस। और ऐसा लगता था कि द पीपल वर पासिंग आर्टिफिशियल लाइफ। इट सीम्स दैट द पीपल वर पासिंग आर्टिफिशियल लाइफ, एक बनावटी जिंदगी जी रहे थे और एक बंधन में रह रहे थे। उस बंधन से मुक्त होने का कार्य जिसने किया वो वर्ड्सवर्थ थे, और उसके पहले के कुछ मूवमेंट थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, रूसो का आना था, विलियम गॉडविन का आना था। दीज वर द ग्रेट या ह्यूज पर्सनालिटी हु जस्ट invoked the people that you have to broke the chain of this slavery that was the artificiality. सो इतना सारा चीज मैंने आपको हल्का हल्का बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई समझने में? फिर मैं इसको लेकर के बात कर पाऊंगा। That clear, sir. ओके ओके। यू विल कम टू नो, जब मैंने बताया कि फ्रॉम 1660 टू 1785 restoration age or age of John Dryden, I told you about from 1700 to 1745 Alexander Pope or age of Alexander Pope or age of sensibility, not age of sensibility, Augustan age. And then I told you about Augustan age के बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रॉम 1700 टू 1745। एज ऑफ सेंसिबिलिटी को हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ इनलाइटमेंट भी और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं। वो जो एज था, ये पूरा एज सही मायने में प्रोज के डेवलपमेंट का एज था। इवन यू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोज इन पोइट्री आल्सो। प्रोज का रिफ्लेक्शन आपको पोइट्री में भी देखने को मिलेगा, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ह्यूमन नेचर, heroic couplet, you came to know about a very significant point I discussed with you, heroic tragedy, comedy of manner or restoration comedy. You came to know about periodical essay. You came to know about it was an age of literary magazines का, journals का, newspapers का, coffee house का, periodical essay का. You have read Richard Steele, you have read Joseph Edison, Dr. Samuel Johnson, Jonathan Swift, Oliver Goldsmith. All these things you have read. So before talking about this huge personality, first you should try to understand the whole माशरा क्या था, माहौल क्या था, environment क्या था, under which माशरा, under which environment, under which situation or condition he was brought up, he was nurtured, cared, brought up. These things we have to keep in our mind. Second important point I would like to tell you कि जब ये इस एज का खात्मा होता है, जिस एज का नाम था एज ऑफ इनलाइटमेंट और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, तो उस एज में मैंने बताया प्रोज बहुत इंपॉर्टेंट था, और प्रोज एक नेचुरल जिंदगी जी रहा था, पोइट्री आर्टिफिशियल जिंदगी जी रही थी। तो पोइट्री को नेचुरल जिंदगी में देने के लिए, पोइट्री को एक नेचुरल सांस देने के लिए, पोइट्री को राज दरबारों की शोभा से बाहर निकाल करके, शहरी जिंदगी से बाहर निकाल कर, ग्रामीण अंचल में, उन्मुक्त वातावरण में, ओपन फील्ड में किसानों की आवाज अगर किसी ने बनाया, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की आवाज किसी ने बनाया, या आप कह सकते हैं पहाड़ों का जिसने हमें दीदार कराया, नदियों का दीदार कराया, झरनों का दीदार कराया, और ये खूबसूरत जिसने समा बिखेरी या बनाई, और जिसने सामयीन को अपनी अपनी कलम की जादू से मुतासिर किया, उस ग्रेट पर्सनालिटी का जो नाम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं। सो इफ यू गो विद दीज पॉइंट्स, इफ यू कीप इन योर माइंड, आई थिंक कि ऐसा नहीं कि ये जो लेक्चर है आज के लिए है, दिस इज ओनली फॉर टुडे, टुमारो यू विल फॉरगेट। No, not at all. Whenever you become a teacher, you deliver any lecture, you teach anyone. Yeah, whenever I will teach you second time or third time, if I take William Wordsworth or his works are about his personality,
वो चीजें बार बार रिपीट की जाएंगी। लेकिन अगर कोई टीचर सीधे उस पोएट पे आ जाता है और आगे की हलचल, पीछे की हलचल या जो चीजें और हुई है, जो ट्रेंड्स मूवमेंट्स आए थे, जो बदलाव आए थे, तो इसका मतलब कि अगर वो उसको नहीं लेता है, इट मीन्स दैट दैट लेक्चर इज नॉट कंप्लीट। Even I discussed with you the world is too much with us. I told you how the people were living the materialistic life. William Wordsworth was hating such a life, and he was telling ki we don't have time. We are just spending such a time, such a life where there is room only for what? Where there is room only for artificial life. Late and soon we are doing only one job, that was getting and spending nothing at all. So coming on that poet, we are taking the basic characteristics of his poem or his poetry, that is pantheism, that is mysticism, that is man nature relationship. Yeah, you can say nature as guide, guardian, caretaker, nurse, nature as fountain, head of, you can say healing touch, calm, beauty, tranquility. Nature never did betray. Whatever these words, these things you will come to know, these things have been beautifully presented, described in Tintanabe. But before taking, the important thing is that we all have to cast our eye, we all have to take a look, yeah, we all have to give some time. What happened, what was the condition of the literature before the coming of romantic age, before the coming of William Wordsworth? Number one point, we all have also to think that when William Wordsworth came, when romanticism came, what the changes we find in literature. तो उनके आने से पहले क्या था वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब जब वो आते हैं तब क्या बदलाव आता है वो मैं रिटन फॉर्म में आपके साथ मैंने शेयर किया है। इस पोर्शन को जो मैंने अलेक्जेंडर पोप का है, जॉन ड्राइडन का है, जीआईसी मेंस का मैंने डिस्कस किया था, तब भी मैंने आपको उसका वीडियो और पीडीएफ फाइल भेजा था। जब मैंने आपको जो है विलियम शेक्सपियर पढ़ा, सॉरी अलेक्जेंडर पोप जब मैं पढ़ा रहा था, मॉक एपिक को लेके मैंने बात किया था, तब भी मैंने एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ जॉन ड्राइडन मैंने अच्छे ढंग से आपसे डिस्कस किया था। मैंने केवल आज मैंने कहा कि आई एम रिकॉलिंग ओनली, आई एम जस्ट रिकॉलिंग। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, द इम्पोर्टेंट थिंग की द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री, टॉपिक का नाम है रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री। और यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स है वो मैं सर्किल में, आई विल पुट इट इन सर्किल, यू हैव टू नोट डाउन, यू हैव टू कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड, यू हैव टू कीप दीज वर्ड्स। While ड्राइडेन, पोप एंड जॉनसन वर सक्सेसिवली, अभी अभी मैंने आपको नाम लिया था ड्राइडेन का, पोप का और जॉनसन का। मैं जनरली आपसे जानना चाहूंगा कि जॉन ड्राइडेन का एज कब से कब तक रहा? एनीवन? जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है। व्हाट वाज द एज ऑफ जॉन ड्राइडेन? क्या रेस्टोरेशन एज हम लोग, या 1660 to 1700 1662? 17 नहीं सर, 1700 1660 to 1700। यस Yes, सर, वही तो हम 1660 to 70, या so या 1660 एक्चुअली में, या दैट्स राइट। एक्चुअली मुझे सुनाई पड़ा 1662, इसलिए मैंने कहा 1660। अच्छा ठीक है, ये आपका एज जॉन ड्राइडेन का था। आपको याद होगा जॉन ड्राइडेन को लेकर के मैंने आपको एक बात बताई थी, व्हाट वाज दैट पॉइंट, कि इन दिस एज इन द फील्ड ऑफ पोइट्री यू फाइंड अ मास्टरपीस दैट वाज एब्सलम एंड एचिटॉफन, दैट वाज द वर्क ऑफ जॉन ड्राइडेन। और इसी एज में मैंने आपको बताया था हीरोइक ट्रेजिडी, मैंने आपको बताया था रेस्टोरेशन कॉमेडी। नाउ आई जस्ट वांट टू नो द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, कब से कब तक? 1700 1745। 1745 to 1700 to 1745। 1700 टू 1745, ठीक है, ये भी मेरे समझ में आ, ठीक है, 1700 टू 1745। इस एज में लिटरेचर में आपको क्या बदला? एक नया चीज जो जॉन ड्राइडेन के समय नहीं आया था, इस एज में आपको देखने को मिलता है, वो कौन सी चीज थी? मॉक एपिक? यस सर। कॉपी मॉक एपिक, और वो आपके सिलेबस में है रेप ऑफ द लॉक, जिसको मैंने कहा आई विल डिस्कस, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तीसरा चीज जो है, एक एज और है, जो एज किसका है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है।
उनका टाइमिंग क्या था? 1745 to 1798. 1745 to 1785 85 है सर। या 1785, 1745 टू 1785, 1745 से 1785। एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं सर इसको। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ इनलाइटमेंट, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इस एज में एक सबसे नई चीज आती है, कैन यू मेंशन, जो कि हमें उस उधर वाले एज में देखने को नहीं मिलती है? सर 4 व्हील ऑफ नॉवेल। या एग्जैक्टली, 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल। इसका मतलब यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड इट वेरी वेल। अब मेरे समझ में आ रहा है कि जो ट्रेंड्स मूवमेंट आपको देखने को मिलता है वो सब आपको समझ में आ रहा है कि 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल। फिर आपने पता चला कि रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप, एंड आल्सो यू केम टू नो अबाउट एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, अब ये सब समझ में आया, ये बड़े बदलाव थे। एंड हु सेड 18th century was the age of prose and reason? Who said? Do you remember? अर्नोल्ड। Yeah, Matthew Arnold said. अर्नोल्ड ने कहा था 18th century was the age of prose and reason। उन्होंने जो शब्द यूज किया कि 18th century was the age of prose and reason। उन्होंने क्यों ये नहीं कहा कि 18th century was the age of poetry and emotion? इसलिए कि पोइट्री और इमोशन नेचुरल वे में इस एज में रही नहीं है। कौन सी चीज नेचुरल वे में थी? प्रोज था, और ये एज किसका था? रीजन का एज था। क्योंकि फॉर व्हील्स ऑफ द नॉवेल भी किसमें लिखा गया है? प्रोजाइक लैंग्वेज, मतलब नॉवेल भी प्रोजाइक लैंग्वेज में था, पीरियोडिकल एसेज भी प्रोजाइक लैंग्वेज में था, और वो सब का सब क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उस एज की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब तो ये चीजें आपको मैंने बताया, बड़े बदलाव क्या क्या देखने को मिल रहे थे। अब मैं दोबारा एक आप क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जस्ट आई वांट टू नो, रेस्टोरेशन एज में दो बड़े ड्रामा का ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, दो बड़े ड्रामा का फॉर्म आता है, उसका क्या नाम था रेस्टोरेशन एज में? सर जॉन ड्राइडन का है ऑल फॉर लव एंड मैक फ्लैकनो। I'm not asking the name of drama. My question is that we found the two forms of drama. What were the name of those types of plays that came? Yeah, heroic tragedy। ये मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था? अभी अभी मैंने कई बार मैंने जिक्र किया। आई एम आस्किंग टाइप्स ऑफ ड्रामा विच केम इन रेस्टोरेशन एज। क्या ये हीरोइक ट्रेजेडी रेस्टोरेशन एज में नहीं आती? इसी को ही तो क्या कहा गया? आर रेस्टोरेशन ट्रेजेडी। Yes, sir. Yes, sir. इसी को ही तो रेस्टोरेशन ट्रेजेडी कहा गया था। मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था, जीआईसी वाली क्लास में भी मैंने डिस्कस करके उसका मैंने मैटर भेजा था, उसका वीडियो भी मैंने भेजा था। तो हीरोइक ट्रेजेडी और रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, ये एक जो है आता है किस एज में आता है? ये एक आपका रेस्टोरेशन एज में आता है। दूसरा एक और बदलाव ड्रामा में इस एज में देखने को मिलेगा, मतलब इस एज का मतलब जो वर्षों से पहले का रहा है, वो कौन सा था? एक और चीज इसी एज में, कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये भी आपको याद होगा। इसी को क्या कहा गया? रेस्टोरेशन कॉमेडी कहा गया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों किस एज में आती है? रेस्टोरेशन एज में आता है। लेकिन जब आप एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप में जाते हैं तब वहां ड्रामा फिर बदल जाता है। और ड्रामा में आपको कौन सा बदलाव देखने को मिलता है? कैन एनीवन टेल मी? नो, नो, इफ यू रिमेम्बर मैंने ये भी बताया था, सेंटीमेंटल कॉमेडी सर। Sentimental, हाँ। सेंटीमेंटल कॉमेडी कॉमेडी सर। और एंटी सेंटिमेंटल या एंटी सेंटीमेंटल। एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये तुरंत पता होना चाहिए ये किस किस एज में आया हुआ। एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी, सेंटीमेंटल कॉमेडी और एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी के जो बड़े राइटर थे वो आपके रिचर्ड स्टील थे, जो कि जो है एसेइस्ट भी थे,
कंफर्म हो रहा है? अच्छा, एक तो ड्रामा में आपको देखने को मिला, और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में स्कूल फॉर स्कैंडल के शेरिडान थे, ओलिवर गोल्डस्मिथ का शी स्टूप्स टू कांकर, दीज थिंग्स वी फाइंड। लेकिन इसी एज में ड्रामा के अलावा प्रोज में एक बड़ा बदलाव आता है। इसी एज में प्रोज में क्या बदलाव आता है? प्रोज में कौन सा बदलाव आया था? पीरियोडिकल ऐसे, कौन सा बदलाव आया था? पीरियोडिकल ऐसे। ये पॉइंट सब क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। एक किस एज में आया था? ऑगस्टन एज में पीरियड, बाद में आगे बढ़ा अपनी जगह, लेकिन इसी एज में आया हुआ पीरियोडिकल ऐसे। फिर उसके बाद एक और आपको बदलाव देखने को मिलेगा, वह बदलाव पोइट्री में था, जिसका क्या नाम है? मॉक एपिक। मॉक एपिक। और इसी एज में ही एक पोइट्री के फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जो अलेक्जेंडर पोप और मॉक एपिक या उनके जो फॉलोअर्स थे उनसे अलग लिखे थे, और उन पोएट्स को हम क्या कहते हैं? प्री रोमांटिक पोएट्स। इनमें से आप किसी एक दो का नाम बताइए। थॉमस ग्रे सर। थॉमस ग्रे है, रॉबर्ट बर्नर है, विलियम ओलिवर कॉलिंस, गोल्डस्मिथ, विलियम विलियम Yes. कॉलर। या रॉबर्ट ग्रे, थॉमस ग्रे, एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ डेजर्टेड विलेज, और आपका जो है जेम्स टॉमसन, सबसे पहला नाम जेम्स जेम्स टॉमसन। टॉमसन फर्स्ट है, फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट है जेम्स टॉमसन। सो अगर आपने देखा होगा, अभी मैं रोमांटिक एज में नहीं पहुंचा, अभी मैं केवल उस एज की बात कर रहा हूं जिसमें काफी कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी उसी में भी बहुत सारे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। अब तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया ना कि वर्ड्सवर्थ के आने से पहले लिटरेचर का क्या कंडीशन था, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है एक नजर में। और उस एज में, जिस एज में विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एज ऑफ जॉन ड्राइडन कहते हैं, जिसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, जिसको हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं, उस एज की कुछ कॉमन फीचर्स रही है। वो कॉमन फीचर्स क्या थी? हीरोइक कपलेट का यूज। हीरोइक कपलेट उस एज की एक और कॉमन फीचर्स क्या रही है? ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव को लेकर के बात की गई है। ब्यूटी ऑफ नेचर। और हाँ, और एक चीज और किसकी बात की गई है? स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, स्ट्रिक्ट STRICT, स्ट्रिक्ट लिटरेरी नॉर्म्स था। स्ट्रिक्ट लिटरेरी नॉर्म्स को लेकर के बात होती है। कोर्टली मैनर रहा है, आर्टिफिशियल पोइट्री, या आप कह सकते हैं कि प्रोजाइक लैंग्वेज का यूज इन पोइट्री, ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। लेकिन जब अभी आप रोमांटिक एज में जाएंगे तो हीरोइक कपलेट की जगह क्या चीज आ जाएगा? रोमांटिक एज में हीरोइक कपलेट की जगह क्या चीज आ जाएगा? ब्लड। ओ माय गॉड, ये हीरोइक कपलेट की जगह आपको ये नहीं याद आ रहा है कि हीरोइक कपलेट फॉर्म ऑफ वर्स है, तो वहां पे ब्लैंक वर्स आएगा? इतना सारा पढ़ा चुकी, इतनी बार बता चुके, फिर भी नहीं। मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि हीरोइक कपलेट का यूज जो है रेस्टोरेशन एज में हुआ है, हीरोइक कपलेट का यूज आपका अलेक्जेंडर पोप के एज में हुआ है, हीरोइक कपलेट का यूज आपका जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी में हुआ है। हीरोइक कपलेट वर्स फॉर्म है, इट्स नॉट द फॉर्म ऑफ द पोयम। जब अगर बैलेट का नाम कोई ले रहा है तो क्या हीरोइक कपलेट जो है फॉर्म ऑफ द पोयम रही? ये तो वर्स फॉर्म रहा है ना। तो उस वर्स को हटा करके कौन से वर्स को यूज किया गया? ब्लैंक वर्स को यूज किया गया ना रोमांटिक एज में। द प्रील्यूड ब्लैंक वर्स में लिखा गया, टिंटन अबे ब्लैंक वर्स में लिखा गया, व्हाट आर द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ऑल द पोएम्स हैव बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स। दूसरा चीज जो है, ह्यूमन नेचर की जगह आप क्या पाते हैं, क्या तब्दीली पाते हैं? नेचुरल एलिमेंट। यस, दैट्स गुड। हम एग्जैक्टली वही वर्ड चाहते हैं, हम उसकी जगह घूम फिर करके नहीं। अब जैसे आपने विनोद जी ने तुरंत कवर कर लिया, पकड़ लिया। अगर ह्यूमन नेचर यहाँ पर रहा है
तो वहां ह्यूमन नेचर होना होकर के क्या था, नेचर थे, कैपिटल लेटर वाला नेचर, जो नेचर एज अ गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, नर्स, ये आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर आता है। वो नेचर ह्यूमन नेचर नहीं है, बल्कि वो नेचर प्रकृति की बात वहां पे होती है। फिर मैंने आपको एक वर्ड लिखा था कि आपके अगस्टन एज में या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप में यू फाइंड स्ट्रिक्ट लिटरेरी नाम। स्ट्रिक्ट लिटरेरी नाम का मतलब कि हर पोएट एकदम ऐसा लगा था कि कुछ नियमों में बंधा था। तो क्या डू यू फाइंड स्ट्रिक्ट लिटरेरी नाम्स इन रोमांटिक एज आल्सो? यस या नो में आपको बस जवाब देना है। डू यू फाइंड स्ट्रिक्ट लिटरेरी नाम्स इन रोमांटिक एज आल्सो? नो सर। नो। बल्कि आपको वहां पे क्या मिलता है, Free. आपको वहां पे पूरी फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम आप वहां पे पाते हैं, या बिल्कुल फ्री होकर के दे राइट, दे कंपोज। अगर स्ट्रिक्ट लिटरेरी नाम्स में वे बंधे होते तो दे कांट इमेजिन, इमेजिनेशन वहां की सबसे बड़ी खासियत रही है। तो उनको फ्रीडम मिली कि यू कैन यूज ब्लैंक वर्ड्स, उनको फ्रीडम मिली, यू कैन इमेजिन, उनको फ्रीडम मिला, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और उनको ये फ्रीडम मिला कि आप अपनी जो है इमोशन को खूबसूरत ढंग से क्या कर सकते हैं, आप उसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं। उनको उनको फ्रीडम मिला कि यू कैन यूज योर इमोशन एंड क्रिएट सम ब्यूटीफुल थिंग्स एंड क्रिएट समथिंग एंड क्रिएट समथिंग। तो फ्रीडम, जब क्रिएटिविटी तभी होगी व्हेन यू हैव फ्रीडम। जब मैं आपको कह दूंगा कि आप नियमों में बंध करके काम करिए, तो नियमों में जब आप बंधेंगे तो आपकी जो नेचुरल टैलेंट है वो नहीं आ पाएगा, फिर आप केवल एक सर्किल में रह करके ही काम करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. जी सर। इतना समझने में किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आई है? No, sir. Is that ठीक clear? है, क्योंकि No, sir. क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें इतना ठहर के मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, माई ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू टेल यू, ये सारी बातें टिंटन अवे की हर लाइन में आएगा। और टिंटन अवे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता वो कठिन पोएम, माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू क्रिएट एनी फियर इन योर हार्ट एंड माइंड। मेरा बताना है कि टिंटन अवे बहुत ही अच्छी पोयम है, बहुत ही फिलोसफिकल पोयम है। If you don't know these things, you will not be able to understand the beauty of that poem. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो आपने पढ़ा होगा टिंटन अवे या उस लेवल का, वो शायद अभी तक ग्रेजुएशन या पीजी लेवल में उस लेवल पे नहीं पढ़ाया गया जिस लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपको एंजॉय करेंगे। उस लेवल पे नहीं। दिस इज वाई इतना सारा चीज मैं बता रहा हूँ, एंड दीज थिंग्स यू विल कम टू नो उसमें। तो जब मैंने इस एज को लिया तो आई वॉज डिस्कसिंग विद यू, व्हाट आई वॉज डिस्कसिंग विद यू, कि रोमांटिक पोइट्री को लेके बात करनी है, रोमांटिक एज को। लेकिन उससे पहले जो एज था, एज ऑफ ड्राइडेन था, एज ऑफ पोप था, एज ऑफ जॉनसन था, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इनके बाद क्या आता है, इनके लीडरशिप में लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। इनका जो जमाना था उसमें सटायर था, क्रिटिकल इन स्पिरिट था, इनका जो जमाना था फॉर्मल इन एक्सप्रेशन था। उसके बाद जो है क्या होता है, एक नई चीज शुरू होती है जिसको न्यू रोमांटिक मूवमेंट कहा जाता है। रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो मेरे ख्याल से ये तो सारे शब्द क्लियर हो गए ना, कि इनका जो जमाना था ट्राइडेन का, पोप का, जॉनसन का, उसमें हीरोइक कपलेट था, उसमें प्रोजाइक लैंग्वेज का यूज था, उसमें आपका जो है आर्टिफिशियलिटी थी, उसमें आपका कह सकते हैं कि तमाम बहुत सारी चीजें थी। सो ये जो जमाना है, इस जमाने में अगर आप देखते हैं, इसके बाद मैंने बताया था कि एज ऑफ पोप के ही समय एक ग्रुप आता है जिसको आप न्यू रोमांटिक मूवमेंट कह सकते हैं। और उस न्यू रोमांटिक मूवमेंट का जो लीडर था उसका नाम टॉमसन। क्या नाम था? टॉमसन, जेम्स टॉमसन। इन्होंने एक किताब किताब कलेक्शन ऑफ द पोयम लिखा जिसका नाम द सीजन था। ये सब क्वेश्चन हर जगह पूछा जा चुका है, पीजीटी, यूजीसी, नेट। दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यू हैव टू एंजॉय। क्योंकि आप जब तक ये नहीं जानेंगे, ऑलवेज आपको एज बोरिंग लगेगा, ऑलवेज आपको एज लगेगा कि हम उसमें कौन सा पन्ना पलटे। एडवर्ड एल्बर्ट 700 पेज में है, आपका जो है डब्ल्यू जे लॉन्ग इतने सारे पेजेस में लिखा गया है। हमारे काम की कौन सी चीज है और हम कैसे इंफॉर्मेशन को लिंक करें, कौन सी चीज हमें, वी हैव टू पिक अप फ्रॉम रिस्टोरेशन एज
वी हैव टू पिक अप फ्रॉम ऑगस्टन एज, वी हैव टू पिक अप फ्रॉम एज ऑफ सेंसिबिलिटी। फिर उसको हम कैसे रोमांटिक एज से लिंक करें, तो रोमांटिक एज को जब आप लिंक करेंगे तो उसकी जड़ें ऑगस्टन एज में ही है। क्यों? क्योंकि उसी एज में न्यू रोमांटिक मूवमेंट शुरू हो गया था और इसकी शुरुआत करने वाले कौन रहे थे? टॉमसन, जिन्होंने क्या लिखा था? द सीजन, जो 1730 में आई है। 1730 का मतलब एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, was the first noteworthy poem of the romantic revival। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि रोमांटिक रिवाइवल का पहला नोटवर्दी पोयम कौन सा था, द फर्स्ट नोटवर्दी पोयम ऑफ रोमांटिक रिवाइवल वाज व्हाट? द जेम्स सीजन, थॉमसन। जेम्स टॉमसन का। और ये जो जेम्स टॉमसन का द सीजन था 1726 में उन्होंने लिखना शुरू किया एंड इन 1730 इट वाज कंप्लीटेड। इसमें उन्होंने किसके बारे में बात किया? ओनली नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब कि अगर हम किसी बाग बगीचे में जाएं तो बाग बगीचे की जो खूबसूरती होती है, जो हरियाली होती है, जो ओपन फील्ड होता है, जो ओपन स्काई होती है, वो हमें अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने बचपन को याद करिएगा, खास करके द पार्टिकुलर टाइम चाइल्डहुड विच यू स्पेंट, आप अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, विच यू स्पेंड, दोज वर द ब्यूटीफुल डेज। और जगजीत सिंह ने अपनी गजल में बहुत खूबसूरत ढंग से वो कहते हैं कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, लौटा दो मेरा बचपन मेरी जवानी। उन्होंने शायद बड़े एक आध सेकेंड वाली लाइन में कुछ जो है वो कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि लौटा दो मेरा बचपन। तो बचपन को वो लौटाने की बात करते हैं कि यू कैन जस्ट रिटर्न मी एंड टेकिंग एनीथिंग। सो क्योंकि वो जो लाइफ होती है बचपन की, उसको रोमांटिक लाइफ होती है। और हम लोग जब युवावस्था में तब समझते हैं कि रोमांटिसिज्म शुरू हो रहा है। नहीं, असली जो रोमांटिसिज्म है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी है, जो नेचर की फिलॉसफी है, वो जो रोमांटिक लाइफ होती है, वह रोमांटिक लाइफ बचपन में होती है। क्यों? रोमांटिसिज्म का मतलब फ्रीडम से है, रोमांटिसिज्म का मतलब इमेजिनेशन से है। और जितना ज्यादा एक बच्चा इमेजिन करता है उतना एक मेच्योर आदमी नहीं इमेजिन करता, उतना एक मेच्योर आदमी नहीं इमेजिन करता। ये पार्टिकुलर चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसमें से कोई जीआईसी मेंस की भी क्लास का कोई है जो जुड़ा हुआ है? या जो लोग जीआईसी मेंस के एक लोग जुड़े हुए, प्लीज ड्रॉप मैसेज, क्योंकि उसमें से आ रहा है कि क्लास का मैंने टाइमिंग थोड़ा सा हो किया था एंड आई गॉट लेट। आप वहां पे मैसेज डाल दीजिए कि आई विल टेक क्लास एट 8 PM, जो भी जुड़े हुए हो। ओके सर, मैं डाल दूंगा, मैं डाल रहा हूँ। हाँ हाँ, हकीक जी डाल दीजिए ताकि हम लोग यहाँ पे इसको कवर कर सके। So I was telling you what I was telling you कि when you go जेम्स थॉमसन का द सीजन, when you go with anything, तो उन्होंने क्या किया? ही टॉक्ड अबाउट ओपन फील्ड, ही टॉक्ड अबाउट ओपन स्काई, ही टॉक्ड अबाउट रोमांटिसिज्म, और सब चीजें उन्होंने किस में बात किया? द सीजन में बात किया। लेकिन उनकी जो पोयम है और जो वर्ड्सवर्थ की पोयम है, उसमें एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। वह कौन सा अंतर देखने को मिलेगा? वर्ड्सवर्थ की पोयम में नेचर में एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ साथ इंटरनल ब्यूटी भी नजर आती है। वह कौन सी ब्यूटी इंटरनल होती है? मिस्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट, पैंथिज्म का कॉन्सेप्ट, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट, दीज थिंग्स यू सी। तो ये दोनों डिफरेंस रहा है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, व्हेन आई टॉक अबाउट ड्राइडेन, व्हेन आई टॉक अबाउट पोप, व्हेन आई टॉक अबाउट जॉनसन, इसका मतलब वर्ड्सवर्थ से पहले का एज रहा। ड्राइडेन का मतलब 1660 से 1700, पोप का मतलब 1700 से 1745, जॉनसन का मतलब 1745 से 1785। क्या क्या बदलाव आए ये सब मैंने आपको बताया है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि रोमांटिक एज की शुरुआत, तो रोमांटिक एज की शुरुआत जो है पोप के समय में ही प्री रोमांटिक पोएट से हो जाती है। और उसके पहले पोएट प्री रोमांटिक के जेम्स टॉमसन थे, जिन्होंने द सीजन नाम का एक कलेक्शन ऑफ द पोएम लिखा था, जो 1726 में उन्होंने लिखना शुरू किया था और 1730 में जाके वो कंप्लीट होती है। ये दो डेट। और उसमें उन्होंने किसके बारे में बात किया? एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में। ही टॉक्ड अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। अब उसके बाद जो है व्हाट आई वांट टू से, जस्ट आई वांट टू टेल यू, एक्सेप्ट इट व्हाट अदर पॉइंट्स यू फाइंड, you will come to know
कि देयर इज अ क्रिटिक, उन्होंने क्या कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देयर इज अ क्रिटिक जिनका नाम है विक्टर ह्यूगो, VICTOR, विक्टर ह्यूगो, HUGO। विक्टर ह्यूगो कॉल्ड रोमांटिक मूवमेंट लिबरलिज्म इन लिटरेचर, liberalism in literature. And who called Victor Hugo called? Don't forget this question, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक मूवमेंट को लिबरलिज्म इन लिटरेचर की। जो रोमांटिक मूवमेंट था यह लिटरेचर में उदारवादी प्रवृत्ति को लाने का एज था, या उदारवादी छवि को लाने का एज था। इट वाज सेड बाय हु? इट वाज सेड बाय विक्टर ह्यूगो। is simply the expression of life as seen by imagination। और इसका क्या मतलब है? is simply the expression of life, यह जीवन का एक ऐसा अभिव्यक्ति थी जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इमेजिनेशन, rather than by prosaic, ना कि प्रोजाइक। प्रोजाइक का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस। प्रोजाइक का मतलब कॉमन सेंस में। देखिए यहाँ पे दो शब्द आया हुआ, एक है इमेजिनेशन और एक होता है प्रोजाइक। जब आप इमेजिनेशन की बात करते हैं तो कल्पना, और कल्पना का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज अनबिलीवेबल, जो अविश्वसनीय हो। और प्रोजाइक का मतलब ये होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब क्या है? ईश्वर ने हमें आंख अता की है, हमने अपनी आंख को खोला और हमें सामने जो कुछ दिखाई पड़ रहा हम उसी पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आदमी मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, तो अगर कोई क्वेश्चन करे स्वर्ग कहाँ है और मरा तो कब गया, क्या आपने देखा? इसका मतलब यह है कि ये जो क्वेश्चन पूछने वाला है उस आदमी ने कॉमन सेंस को अप्लाई किया, और जो ये यकीन करता है कि आदमी मरने के बाद जो है स्वर्ग में जाता है, उसने कौन से सेंस को अप्लाई किया? इमेजिनेशन को अप्लाई किया। इसका मतलब यह है कि जिंदगी अगर हमें बितानी है तो हमारे पास दोनों सेंस होना चाहिए, इमेजिनेटिव सेंस भी होना चाहिए और कॉमन सेंस भी होना चाहिए। कॉमन सेंस तो अर्थली लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन वह लाइफ जो मरने के बाद शुरू होती है उसमें जिसको हम ट्रुथ कहते हैं, जो सत्य है कि ईश्वर एक है, जो सत्य है कि ईश्वर ही हम सबको बनाने वाला है, उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है। इस तरह से तमाम फलसफे हैं, इस तरह से दुनिया की तमाम मिस्टीरियस चीजें हैं जिसे आप कॉमन सेंस से नहीं समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए आपको इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो विक्टर ह्यूगो कहते हैं कि अब हम जिस एज में आ रहे हैं वह एज ऐसा था जो कॉमन सेंस की जगह किसको इंपॉर्टेंस दिया? इमेजिनेशन को इंपॉर्टेंस दिया। फिर दोबारा मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रोजाइक या कॉमन सेंस को महत्व किस एज में दिया गया था? रेस्टोरेशन एज में, अगस्टन यस, एज में। ऑगस्टन एज में और एज ऑफ सेंसिबिलिटी में। यस, प्रोजाइक या कॉमन सेंस को, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर विनोद जी, कि प्रोजाइक या कॉमन सेंस को जो इंपॉर्टेंस दिया गया था वो वहां पे दिया गया था। और उस प्रोजाइक या कॉमन सेंस के खिलाफ या उसके अगेंस्ट में जो एज आता है वह कौन सा एज है? रोमांटिक एज है, जिसमें विक्टर ह्यूगो ने कहा कि रोमांटिक एज मीन्स लिबरलिज्म इन लिटरेचर। और वो जो है क्या था? इसका मतलब कि इज सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ एज सीन बाय इमेजिनेशन। When you see life through imagination, then it means that is what? That is liberalism or romantic movement. When you apply prosaic or common sense, it means that कि वहां पे आप क्या है? You are just living artificial life or earthly life. Was the central doctrine of English philosophy in the 18th century. बाकी कॉमन सेंस प्रोजाइक या 18वीं शताब्दी की खासियत थी, बट विद द कमिंग ऑफ रोमांटिक एज यू शिफ्ट your vision from common sense to the sense of imagination. ये किसने कहा था? विक्टर ह्यूगो का। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है? विक्टर ह्यूगो का। सो यू विल कम टू नो हियर दिस concept has been given by Victor Hugo. Now the second point. The romantic movement was marked and is always marked by a strong reaction and protest against the bondage of rule. Bondage of rule. Again my question is कि bondage of rule आप किस एज में देखते हैं? When did you see? When did you find bondage of? अगस्टन एज। रोमांटिक एज में। ऑगस्टन एज में। मैंने बताया था स्टिक नाम
तो वो जो बॉन्डेज ऑफ रूल था, उस बॉन्डेज ऑफ रूल के खिलाफ रोमांटिसिज्म आया था। उस एज का जो कस्टम था, कौन सा कस्टम था? एरिस्टोक्रेटिक मैनर था, उसके खिलाफ। आर्टिफिशियल लाइफ, सिटी कल्चर, कोर्टली मैनर, उसके खिलाफ आया था। और जो चीज उस समय की साइंस और थियोलॉजी में थी, उसके खिलाफ आया था। और साथ ही साथ उस समय के लिटरेचर में भी जो चीजें लिखा गया था, उसके खिलाफ था। तो रोमांटिक एज जो था, यह एक तरह का रिएक्शन था, और रिएक्शन और प्रोटेस्ट था किसके खिलाफ? बॉन्डेज ऑफ रूल एंड कस्टम which in science and theology as well as in literature generally tend to fetter the free human spirit। और रोमांटिक एज जो है किसमें विश्वास करता है? फ्री ह्यूमन स्पिरिट, मानव चेतना को स्वतंत्र होना चाहिए। क्या अभी मैंने फ्रीडम की बात की थी या नहीं की थी? I talked with you about imagination, I talked with you about freedom। जी सर। Yes, sir. जी सर। तो यू फाइंड फ्रीडम वेयर? यू फाइंड फ्रीडम इन रोमांटिक एज। और बॉन्डेज ऑफ रूल आप कहां पर पाते हैं? उसके पहले वाले में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रोमांटिसिज्म रिटर्न टू नेचर। रोमांटिसिज्म में किसकी बात की गई? रिटर्न टू नेचर। यह एक स्लोगन था जो किसने दिया था? रूसो ने दिया था। एंड रिटर्न टू नेचर मीन्स नॉट ह्यूमन नेचर। मैंने पहली कैपिटल लेटर में लिख दिया था रिटर्न टू नेचर मतलब प्रकृति की ओर लौटो। मीन्स नेचुरल लाइफ गुजारो। जो अभी आर्टिफिशियल लाइफ है, जो पोइट्री में आर्टिफिशियलिटी है, जो कोर्टली मैनर है, जो राजा रानियों के एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी आवाज को या उनकी जो है कल्चर को बढ़ावा दिया गया, उधर से हट करके कंट्री साइड जो आप कह सकते हैं कि लाइफ रही है, जो कल्चर था, जो मैनर था, उसको इम्फेसाइज किया गया। तो रोमांटिसिज्म रिटर्न टू नेचर एंड टू प्लेन ह्यूमैनिटी for its material, and so is in marked contrast to classicism which had confined itself। classicism means neoclassical age ने तो confine किया था। neoclassical age में कौन सा मैनर था? क्लब का मैनर था। neoclassical age में ड्राइंग रूम का मैनर था। neoclassical age में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ जो लंदन की थी उसका था। नियोक्लासिकल एज में नियोक्लासिकल एज में कॉफी हाउस का मैनर था। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं नियोक्लासिकल एज का क्या मतलब है। नियोक्लासिकल एज का मतलब कि रेस्टोरेशन एज, आर एज ऑफ ड्राइडेन, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, आर ऑगस्टन एज, आर आप कह सकते हैं कि एज ऑफ इनलाइटमेंट, आर एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। उस समय जो एज थे, वहां का जो कल्चर था, उसमें क्या क्या चीजें थी? क्लब की इंपॉर्टेंस था, कॉफी हाउस का इंपॉर्टेंस था, उसमें जो इंपॉर्टेंस था ड्राइंग रूम का इंपॉर्टेंस था। इन सब चीजों को पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लंदन इंपॉर्टेंस था। लेकिन इससे बाहर निकालता है कौन? निकालता है आपको रोमांटिक एज निकालता है। देन यू फाइंड कि इट ब्रॉट अगेन द ड्रीम ऑफ अ गोल्डन एज। और तब हम जो है रोमांटिक एज का मतलब कि गोल्डन एज आते हैं। और रोमांटिक एज गोल्डन एज था किसका? गोल्डन एज था पोइट्री का। इन विच द ईस्टर्न रियलिटीज ऑफ लाइफ वर फॉरगॉटन, जिसमें जो है जीवन की जो ईस्टर्न रियलिटी थी। ईस्टर्न रियलिटी वह रियलिटी होती है जिसको आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहते हैं कि जीवन में दुख है, जीवन में सुख है, इसकी जब आप अनुभूत करते हैं तो वह ईस्टर्न रियलिटी है। लेकिन जब आपको परियों की कहानी सुनाई जाए, जब आपको जो है सुपर नेचुरल कैरेक्टर की कहानी सुनाई जाए, जब आपको कुबला खान जैसा क्रिएशन मिले, जब आपको क्रिस्टेबल जैसा क्रिएशन मिले, जब आपको कॉलेज जैसी पोएट मिले जो कि जो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जैसी पोयम लिखते हैं, तो उसमें ईस्टर्न रियलिटी नहीं है, बल्कि उसमें क्या है? एक एन अदर वर्ल्ड है जिसको आप इमेजिनेटिव वर्ल्ड कहते हैं। तो इसने आपको क्या किया? गोल्डन एज में ले गई है, लेकिन उस गोल्डन एज में ईस्टर्न रियलिटी की कोई जगह नहीं थी। और ईस्टर्न रियलिटी कौन सी होती? वह रियलिटी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, दैट इज ईस्टर्न रियलिटी। और उस रियलिटी को आपको क्या किया जाता है? फॉरगेट कराया जाता है। द आइडियाज ऑफ यूथ वर स्टैब्लिश एज द ओनली परमानेंट रियलिटी। और एक दूसरी दुनिया में, दैट इज द इमेजिनेटिव वर्ल्ड, वहां पे आपको लेकर के लोग जाते हैं या वहां पे जाया जाता है। So you find what? Dream of golden age. Now you find romanticism was marked by intense human sympathy। इस romanticism की सबसे बड़ी खासियत है इसमें सिंपैथी का कॉन्सेप्ट आया। अगर सिंपैथी का कॉन्सेप्ट ना होता तो जितने पोएट हैं उनकी सिंपैथी किसके प्रति है? बर्ड्स के प्रति है। कुक्कू पर पोयम लिखी गई, नाइटिंगेल पर पोयम लिखी गई, स्काईलार्क पे पोयम लिखी गई, पर्वतों पर, झरनों पर, पहाड़ियों पर, नेचुरल ऑब्जेक्ट पर, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड दैट वाज लिविंग और नॉन लिविंग, उनके प्रति सिंपैथी आपको देखने को मिलती है। सॉलिटरी रीपर जैसा कैरेक्टर हमारे सामने आता है जो है, तो उसमें एक चीज था, यहाँ पे सिंपैथी रही है। एंड बाई अ कॉन्सिक्वेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट,
और किसको महत्व दिया गया, ह्यूमन हार्ट को महत्व दिया गया। ह्यूमन हार्ट में इमोशंस को महत्व दिया गया, ना कि इंटेलेक्ट को महत्व दिया गया। इंटेलेक्ट का मतलब होता है कि रीजन, इंटेलेक्ट का मतलब होता है साइंस, इंटेलेक्ट का मतलब ये होता है कि समथिंग जस्ट अनलॉक योर माइंड। तो माइंड को, इंटेलेक्ट को, साइंस को यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया, बल्कि क्या हो गया, हार्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया, इमोशंस को इंपॉर्टेंस दिया गया, फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दिया गया, सिंपैथीज को इंपॉर्टेंस दिया गया। एंड यू विल कम टू नो बट रादर टू द टच ऑफ अ sympathetic nature, and things that are hidden from the wise and prudent are revealed unto children. Pope had no appreciable humanity. पोप में appreciable humanity को लेकर के पोप ने कभी अप्रिसिएशन नहीं किया। स्विफ्ट वर्क इज अ फ्राइटफुल सटायर, स्विफ्ट में केवल सटायर नजर आया, एडिशन में डिलाइटेड पोलाइट नजर आई, सोसाइटी नजर आया, तमाम थिंग्स यू फाइंड। सो यू विल कम टू नो, ये जितनी बातें बताई गई है ये रेस्टोरेशन एज और ऑगस्टन एज को लेकर के बात बताई गई है। उन सबके जमाने में ये चीजें थी, लेकिन रोमांटिक एज जब आया तो वहां पे क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपैथी आता है, ह्यूमन हार्ट को महत्व दिया जाता है, इंटेलेक्ट को इग्नोर किया जाता है, साइंस को इग्नोर किया जाता है, और साथ ही साथ सिंपैथेटिक नेचर का कॉन्सेप्ट यू फाइंड देयर। नेक्स्ट पॉइंट है, द रोमांटिक मूवमेंट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। अभी मैंने बताया था कि रोमांटिक एज में इंडिविजुअलिज्म को महत्व दिया गया। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इज इम्पोर्टेंट, वेदर दैट इज you can say loveliest object, yeah, whether that is the trivial object, that doesn't matter, but every object. So romantic movement was the expression of individual genius rather than of the established rules, ना कि किसी एक रूल्स को लेकर के, वहां पे हर चीज को इंपॉर्टेंस दिया गया। देयर आर वेरियस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, कह रहे रोमांटिसिज्म की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बॉन्डेज। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज 6 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बॉन्डेज, जो नियम बनाए गए थे, स्ट्रिक्ट नाम था, उसके खिलाफ लोगों ने लिखा। रिटर्न टू नेचर एंड ह्यूमन हार्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया। द इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड स्टेज या ओल्ड सागास एंड मेडिवल एज का को इंपॉर्टेंस दिया गया, ओल्ड सागास एंड मेडिवल रोमांसेस। सजेस्टिव ऑफ अ हीरोइक एज को महत्व दिया गया। सिंपैथी फॉर द टॉयलर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो टॉयलर्स है, टॉयलर्स का मतलब कठिन परिश्रम करने वाले जो मजदूर थे, कंट्री साइड के लोग थे, उनको इंपॉर्टेंस दिया गया। द इम्फेसिस अपॉन इंडिविजुअल जीनियस को दिया गया। एंड द रिटर्न टू मिल्टन, मिल्टन को आइडियल माना गया, एलिजाबेथन पोएट्स को आइडियल माना गया, इंस्टेड ऑफ पोप एंड ड्राइडन। पोप और ड्राइडन को आइडियल नहीं माना गया, बल्कि पोप और ड्राइडन को इग्नोर किया गया। इंस्टेड ऑफ पोप एंड ड्राइडन यू विल कम टू नो कि इन सबको, किसको, जॉन मिल्टन को, मेडिवल एज को, एलिजाबेथन को, इन सबको ग्लोरीफाई किया गया। इवन यू कैन जस्ट सी जॉन कीट्स का ला बिली डेम सांस मर्सी, उसका सेटिंग क्या है, मेडिवल एज है, नाइट्स है, और उसका अपना लव है, उसका फेरी का जिक्र किया गया। सो यू फाइंड दिस थिंग, व्हाट आई वांट टू जस्ट से कि आपको एक एक पॉइंट ये ध्यान में रखना, एंड दीज पॉइंट्स आर हाईली सिग्निफिकेंट वेदर यू आर गोइंग टू राइट एनी आंसर, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एनी रोमांटिक पोएट और रोमांटिक एज, तो आपको तो दोनों एज कवर हो जा रहा है। एज ऑफ पोप भी कवर हो जा रहा है, रोमांटिक एज भी क्या क्या बदलाव देखने को आपको मिलते, कौन किसको फॉलो करता, कौन किसके खिलाफ जाता है। Now the next critic is according to Theodore Watts Dunton, इनका पूरा नाम क्या है, Theodore Watts Dunton, the romantic revival was equivalent to the Renaissance of wonder। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसने रोमांटिक एज को रिनेशा ऑफ वंडर कहा है। इट वाज सेड बाय whom? It was said by Theodore Watts Dunton। Who said? It was said by Theodore Watts Dunton। उन्होंने रोमांटिक एज को रिनेशा ऑफ वंडर कहा है। रिनेशा वंडर, रिनेशा की कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा आती है, दोबारा देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू वाल्टर पेटर ने क्या कहा, रोमांटिसिज्म मीन्स द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ब्यूटी का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है रोमांटिक एज में। According to another critic, Herford points out that romantic movement was primarily an extraordinary development of imaginative sensibility। Imaginative sensibility का extraordinary development देखने को मिलता है रोमांटिक एज में। तो चाहे थियोडोर वैट्स डंटन हो जिन्होंने कहा कि रिनेशा ऑफ वंडर, चाहे वाल्टर पेटर हो जिन्होंने कहा द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, चाहे हर्बर्ट पॉइंट्स हो जिन्होंने ये कहा कि इसको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ
इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी, यू हैव टू कीप दिस क्रिटिक्स इन योर माइंड। कैजामिया ने क्या कहा है कि द रोमांटिक स्पिरिट कैन बी डिफाइंड एज एन एसेंशियल प्रीडोमिनेंस ऑफ इमोशनल लाइफ। इसमें प्रीडोमिनेंस किसका था? इमोशनल लाइफ का। प्रोवोक्ड आर डायरेक्टेड बाय द एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेटिव विजन, और इसमें सबसे ज्यादा इमेजिनेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया। एंड इट्स टर्न स्टिमुलेटिंग आर डायरेक्टिंग सच एक्सरसाइज। फिर आपको देखेंगे कि इट वाज परहैप्स हीगेल हु फर्स्ट डिफाइंड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। शायद जो है पहले आदमी थे हीगेल जिन्होंने इसको क्या कहा था? लिबरलिज्म इन लिटरेचर। द रोमांटिक्स लुक्ड फॉर इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस टू स्पेंसर। रोमांटिक ने अपना आइडियल किसको माना? स्पेंसर को माना, मिल्टन को माना, ना कि जॉन ड्राइडेन और अलेक्जेंडर पोप को माना। Whereas Dryden and Pope had looked to the romantic poets of antiquity. रोमांटिक पोएट्स ने ड्राइडेन और पोप को प्राचीन मतलब प्रचलन से बाहर मान लिया, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इन द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म सम प्री रोमांटिक पोएट। बिगिनिंग जो है रोमांटिसिज्म में कुछ प्री रोमांटिक पोएट जिसका नाम है टॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस, ओलिवर गोल्डस्मिथ कंट्रीब्यूटेड। इन्होंने रोमांटिक एज में काफी इंपॉर्टेंस योगदान दिया। उसके बाद है टॉमसन का द सीजन, अभी मैंने जिक्र किया था 1726 1730। ग्रेस एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ओलिवर गोल्डस्मिथ का डिजर्टेड विलेज। विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग। यू फाइंड दिस थिंग की ये सारी चीजें आती हैं। एंड विलियम ब्लेक द टाइगर एंड द लैम्ब, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है। थॉमसन का द सीजन इज द अर्लीस्ट वर्क ऑफ रोमांटिसिज्म। ही डिस्क्राइब द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। सब कुछ डिस्कस हो चुका है, कुछ ऐसा नहीं जो अलग है। बिसाइड्स प्री रोमांटिक पोएट्स सम फिलासफर एंड थिंकर। इसके अलावा कुछ फिलासफर और थिंकर जिसमें रूसो थे, विलियम गॉडविन थे, कांट थे, हीगेल थे, उन्होंने भी इसके डेवलपमेंट में योगदान दिया। रूसो का जो कंट्रीब्यूशन था, रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज इन चेन एंड एजुकेशन सप्लीमेंट्स मैन्स नेचर आर द रिमार्केबल पॉइंट दैट कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सपेंशन ऑफ रोमांटिसिज्म। पहले भी मैंने बताया था अपने अर्लियर लेक्चर में भी कि जब भी आप रोमांटिक एज की बात करेंगे तो रूसो की बात करनी पड़ेगी, जब भी आप रोमांटिक एज की बात करेंगे आपको जो है विलियम गॉडविन की बात करनी पड़ेगी। प्री रोमांटिक पोएट, अभी हम वर्ड्सवर्थ पे नहीं आए, अभी हम लिरिकल बैलाड पे नहीं आए, अभी उनसे पहले वर्ड्सवर्थ और लिरिकल बैलाड से क्या क्या हुआ था उससे पहले। फिर है विलियम गॉडविन बुक पॉलिटिकल जस्टिस सपोर्टेड फॉर इक्वल राइट। विलियम गॉडविन का जो बुक पॉलिटिकल जस्टिस है इसने भी रोमांटिसिज्म का काफी कंट्रीब्यूशन दिया। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में आता है, इसका जो स्लोगन था लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन था। द चीफ लिटरेरी फिनोमेना ऑफ द कॉम्प्लेक्स 18th सेंचुरी आर द रेन ऑफ सो कॉल्ड क्लासिसिज्म। 18th सेंचुरी जो फेमस था किसके लिए? क्लासिसिज्म का, लेकिन इसमें रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी हुआ था एंड द डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। जो क्लासिसिज्म था उसमें तीन चीजें हुई थी जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। एक तो क्लासिसिज्म का, रोमांटिक पोइट्री जो प्री रोमांटिक पोएट्स, और मॉडर्न नॉवेल भी आता है जिसको फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल के नाम से जानते हैं। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है, सम क्रिटिक्स से दैट रोमांटिसिज्म बिगन इन 1785। ये जो मैं डेट बार बार आपको बता रहा था, एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1785, उसके पीछे रीजन ये था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रोमांटिक 1785 से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि द गीता जो किताब है वो जो है पहली बार ट्रांसलेशन किससे होकर के आती है? संस्कृत से इंग्लिश में, और उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टिसिज्म है ये वेस्ट को पहली बार प्राप्त होता है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में आया था उसकी वजह से शुरू होता है रोमांटिसिज्म। कुछ लोग कहते हैं नहीं 1798। तो एग्जैक्ट डेट आपका क्या है? 1798। और 1798 क्यों फेमस है? लिरिकल बैलाड के लिए फेमस है। 1785 क्यों फेमस है? गीता का ट्रांसलेशन हुआ है। 1789 क्यों फेमस है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए फेमस है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन क्या था? लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। विलियम गॉडविन का जो बुक है पॉलिटिकल जस्टिस, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था? इक्वल राइट्स ऑफ पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट था। रूसो का क्या है? रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंज एवरीवेयर। ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड। सो जो लिरिकल बैलाड है, इट वाज अ जॉइंटली वर्क ऑफ कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें 23 पोएम्स था, और इस 23 पोएम्स में आप देखेंगे 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और 4 कॉलेज ने लिखा है, जिसमें टिंटन अबे वर्ड्सवर्थ का जो आपको सिलेबस में पढ़ना, और कॉलेज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इतना चीज मुझे डिस्कस करना था बस। जो रोमांटिक एज का था इस चीज को लेके मुझे बात करनी थी। जस्ट आई वांट टू नो कि क्या हैव यू एनी प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव टू टेक अनदर सेशन। और इस सबके लिए इम्पोर्टेंट है whether you are preparing for UGC NET, TGT, PGT are going to write an answer
फॉर जीआईसी में हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये लेक्चर रिकॉर्डेड होके हर जगह भेजा जाएगा, इसीलिए पीडीएफ फाइल मैंने तीनों क्लास में भेजा है। तो जस्ट आई वांट टू नो कि हैव यू एनी प्रॉब्लम किसी तरह का? सर इरेज कर दीजिएगा इस पे, रिमूव द इरेजिंग। ओके, एक्चुअली में व्हाट हैपेंड कि मैंने आपको, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूँ रोमांटिक एज की उस मैटर को। ये पहला पेज है, रोमांटिक एज द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री। इट वाज द सेकेंड पेज जो हमने आपसे डिस्कस किया था। दिस वाज द थर्ड पेज एंड दिस वाज द फोर्थ पेज एंड दिस वाज द फिफ्थ पेज। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अगेन जस्ट saving. So I don't think you have any problem because I have discussed in a very detailed way. और एक इसमें पोर्शन है ओरिजिन ऑफ द नॉवेल, वो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूंगा, या अगर समय मिला तो आप पे ही कल डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट, ये पूरा नोट्स 3 हिस्सों में बटा हुआ है। उस 3 हिस्सों में एक तो ओरिजिन ऑफ द नॉवेल है, दूसरा हिस्सा आपका वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट है, और जो पहला हिस्सा डिस्कस किया गया कि रोमांटिक एज और ऑगस्टन एज और जो उसके पहले के एज थे। So I think now I have done my job. You can just send your feedback about the class and also tell others. और इसको आप अच्छे ढंग से एक बार करिएगा। और इसके अलावा मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जीआईसी मेंस में डिस्कस कर रहा हूँ। वो मैटर मैं आपको जब भी भेजूंगा तो इसका मतलब हो कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आपके यहाँ है और आपको वो चीजें अच्छे ढंग से कवर करना है। तो इफ आई सेंड दैट मैटर डिस्कस एंड ऑन अनदर प्लेटफॉर्म देन यू हैव टू गो विद दैट पॉइंट। आपको वो वीडियो या वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। वो मैं पहले से ही पूरा पीडीएफ में भेज चुका हूँ आपके यहाँ। ठीक हो?